کی مبارک دینا چاہتا ہوں۔ پاکستان ایک عظیم خواب کا نام تھا، اور وہ خواب تھی ہمارے فاؤنڈنگ فادرز قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کی، اور وہ خواب یہ تھی کہ ہم نے پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا تھا، اور دوسری طرف اس ریاست کے اندر قانون کی بالادستی قائم کرنی تھی، جدھر سب انسانوں کے حقوق ہونے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خواب ہے، اور اس سفر کے اوپر ہم نکلے ہوئے ہیں، اور مجھے کوئی شک نہیں کہ انشاءاللہ اس منزل تک ہم پہنچ جائیں گے۔ وزیراعظم عمران خان کے یوم آزادی کی قوم کو مبارکباد، کہا قوم نے مل کر کرونا وائرس کا مقابلہ کیا ہے، اسمارٹ لاک ڈاؤن سے کرونا کے پھیلاؤ میں کمی واقع ہوئی، معاشی صورتحال بہتر ہو رہی ہے، جولائی میں حد سے زیادہ ٹیکس جمع کیا ہے، آئی پی سے مذاکرات کے بعد عوام کو سستی بجلی بھی فراہم کی جائے گی، پوری قوم کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جدوجہد میں ساتھ کھڑی ہے۔ ہم نے ملک حاصل کرنے کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں، شبلی فراز کہتے ہیں کہ 73 سال کے سفر میں کئی اتار چڑھاؤ آئے، مشکلات سے گزر گئے ہیں، اب بہتری آ رہی ہے، ماضی کی غلطیوں کو دور کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا، 2 سال مشکل رہے، حکومت کو ورثے میں مشکلات ملی تھی، عمران خان کی لیڈرشپ سے متاثر ہو کر سیاست میں آئے، سیاسی ہوں نہ ہی سیاسی ہونے کا شوق ہے۔ پاکستان کے تمام تر مسائل کا حل آئین ہے، پارلیمنٹ کی بالادستی اور جمہوریت کو تسلیم کرنے میں ہے، بلاول بھٹو کا جشن آزادی پر پیغام، کہا ہمارے نوجوان متحرک اور آزادی کی اہمیت سے بخوبی واقف ہیں، پاکستان کی تحریک آزادی پرامن سیاسی جدوجہد ہے، انہوں نے کہا کہ آٹا، چینی اور پیٹرول جیسی اشیاء کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، نظریہ ضرورت اور آمریت ہر چند سالوں بعد کیوں سر اٹھا کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ یوم آزادی کی مرکزی تقریب کا ایوان صدر میں انعقاد، پرچم کشائی کی گئی، پاکستان پر امن ملک ہے، دشمنوں کو بھی ہمیشہ امن کا پیغام دیا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے لازوال قربانیاں دی ہیں، دنیا کو سکھا دیا کہ دہشت گردی کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے، صدر مملکت عارف علوی کا تقریب سے خطاب۔ قوم کو 74واں یوم جشن آزادی مبارک، مادری وطن کو عظیم سے عظیم تر بنائیں گے، بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے افکار اور مصور پاکستان علامہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر، ایک باوقار اور قائدانہ کردار کا حامل ملک بنے گا۔ یوم جشن آزادی کا استحکام، پاکستان ترقی و خوشحالی کی خصوصی دعاؤں کے ساتھ آغاز، نماز فجر میں امن اور یکجہتی کی دعائیں، ملک بھر میں خصوصی تقریبات، جوش و خروش دیدنی، مادری وطن کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کرنے کا عزم۔ وفاق
इराक में 31 तोपों की सलामी, सूबाई दारुल-हुकूमत में 21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज हुआ। नौजवानों ने अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक जुगाफ नारे भी लगाए। यौम आज़ादी पर सिविल अवार्ड्स का ऐलान, 24 शख्सियात को सितारा शुजात, 27 को सितारा इम्तियाज अता किया जाएगा। 44 शख्सियात को सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी अता किया जाएगा। मरहूम सादिकीन अहमद फराज, डॉक्टर जमील समेत 6 शख्सियात के लिए निशान इम्तियाज। मौलाना तारिक जमील के लिए प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का ऐलान। माया नाज सूफी गुलकारा आबिदा परवीन के लिए निशान इम्तियाज। बुशरा इंसारी, तल्लत हुसैन, फारूक कैसर, नईम बुखारी और क्रिकेटर अब्दुल कादिर मरहूम के लिए भी सितारा इम्तियाज का ऐलान। मकबूजा कश्मीर के फैजाओं में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, श्रीनगर के दरो दीवार पर जीवे जीवे पाकिस्तान की तहरीरें दर्ज कर दी गई। 15 अगस्त को यौम स्याह के तौर पर मनाया जाएगा। घरों पर स्याह परचम भी लहराए जाएंगे। मज़ार-ए-कायद पर एजाज़ी गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार-ए-कायद पर फराइज़ समझाए। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी मोड मुश्ताक अहमद थे। एजाज़ी गार्ड्स के 2 दस्ते शामिल थे। हर दस्ता 32 कैडेट्स पर मुश्तमिल था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर इमरान इस्माइल की मज़ार-ए-कायद पर हाज़री आमद का ऐलान बगल बजाकर किया गया। वज़ीर आला और गवर्नर ने मज़ार-ए-कायद पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिह ख़्वानी की, मेहमानों के किताब में अपने तासुरात दर्ज किए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि पूरी कौम इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि कश्मीर को भारत से आज़ादी दिलाई जाए। मज़ार इकबाल पर गौर्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फौज के चाकू-चौबंद दस्ते ने फ्राइज संभाल लिए। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिह ख़्वानी की, मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में जश्न आज़ादी की ख़ुसूसी तकरीब। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कौम को मुबारकबाद पेश की। कहा, कुर्बानियों के नतीजे में पाकिस्तान हासिल किया। लोग आबाओ अजदाद की जायदादें छोड़कर पाकिस्तान में आए थे। दुश्मन पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। कशकोल और एटमी ताकत इकट्ठे नहीं चल सकते। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में कायद आज़म और अल्लामा इकबाल के ख्वाब के मुताबिक पाकिस्तान को अजीम फलाही मुमलिकत बनाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दौरा, केक भी काटा। मंसूरा लाहौर में यौम आज़ादी की ख़ुसूसी तकरीब। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने परचम कुशाई की। कहा, अल्लाह पाक की पाकिस्तान अजीम नेमत है। मादरे वक्त एक जोग्राफिया ही नहीं, एक नजरिया और अकीदा भी है। जिंदगी की आखिरी सांस तक, खून के आखिरी कतरे तक पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। तुमको सलामत रहना है, हमको तो मिट जाना है ए अर्ज़े वतन, लेकिन तुमको सलामत रहना है। क़यामत की सहर तक जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो सारी पाकिस्तानी कौम।
हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक कहती हैं कि कौम को क़यामत के सहर तक जश्न आज़ादी मुबारक। कौम आज के दिन अज़्म करे कि मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए हर जिद्दोजहद करेगी। 14 अगस्त पाकिस्तान की तारीख में एक सुनहरी दिन है और ये दिन खास तौर पर हमें उन कुर्बानियों की याद दिलाता है जो हमारे आबाओ अजदाद ने अपनी सकाफती, मजहबी और समाजी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेश की थी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी, पूरे पाकिस्तान को, तमाम पाकिस्तानियों को 14 अगस्त की बहुत 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 मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा रेजोल्यूशन 2020 के लिए ये है कि अवामुन नास में नफसियाती तौर पर हिम्मत और हौसला पैदा करने की ज़रूरत है। हर मुश्किल से और मसले से न बुर्दाज़मा हो जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। यौम जश्न आज़ादी पर अदाकार भी पुरजोश हैं। वतन के लिए हर कुर्बानी से गुरेज न करने का अहद किया कि मुल्क की तरक्की के लिए हर हद तक जाएंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का प्राइमरी तक यकसा निसाब अप्रैल में लॉन्च करने का ऐलान। 6ठी से 8वीं तक यकसा निसाब 2022 में, 9वीं से 12वीं तक 2023 में नाफिज किया जाएगा। तुर्की की मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान मुआहदे की मज़म्मत। कहा, तारीख फ़लस्तीनी अवाम के साथ धोखा करने वालों को शिकस्ता हाल देखेगी। फ़लस्तीन का अमारात से अपना सफ़ीर एहतजाजन वापस बुलाने का फैसला। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइली मुआहदे को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। और इसराइल UAE से मुआहदे के बावजूद मगरबी किनारे के लिए बेचैन। नेतन्याहू कहते हैं कि मुआहदा हुआ मगर अपने मकसद से पीछे नहीं हट सकते। मंसूबा अब भी उनकी टेबल पर मौजूद है। इसराइल की खुद मुख्तारी को में कोई तब्दीली नहीं हुई।